Hello everyone, this is Priya Kaushal from the Department of Economics. Today I am going to talk on matrix multiplication. So to find the matrix multiplication, there are certain conditions. So look upon these conditions. To find the product of two matrices, what we want is the inner dimensions. So the inner dimensions should be same. So now what does this inner dimension means? It means that the number of rows present in the first matrix should be equal to the number of rows in the second matrix. So this is the case when we are having only two matrices. अगर हमारे पास सिर्फ दो matrices हैं तो इनर डायमेंशन का मतलब क्या होगा? इनर डायमेंशन सेम होनी चाहिए. इसका मतलब है कि जो पहली मैट्रिक्स होगी उसके जो कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए. So let us suppose that we have two matrices A and B. So matrix A has the order m by n and matrix B is having the order n by p. So I have written the order separately over here, m by n and n by p. So now what is the inner dimension, or what is the condition of the same inner dimension? The first matrix is A and second matrix is B. So the number of columns of present in the first matrix should be equal to the number of rows present in the second matrix. So these are same. So it means that the product of A with B is possible over here. It means that A into B is possible over here because the inner dimensions are same. यानी m और ये नंबर ऑफ कॉलम्स n है और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे n है, तो ये सेम है, इसलिए इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है. द प्रोडक्ट वी अच्छा हमें मिलेगा क्या अब यहाँ से? After the multiplication of matrix A by B, what we get? We will get another matrix A into B whose order would be equal to the left elements of the order, that is m by p. Now in the multiplication condition, we just use these two notations, n and n, these should be same. Whatever is left, that is the order of new matrix which is formed after the multiplication of the two matrices. So the new matrix A into B matrix would be of order m by p. जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर m by p होगा. Now for example, we are having here two matrices. मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2/3, मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3/3. अब यहाँ पे मैट्रिक्स A जो है उसके 3 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स B के 3 रोज हैं. इट मीन्स द इनर डायमेंशंस आर सेम, सो द प्रोडक्ट ऑफ A by B is possible over here. So what if we are talking about the reverse order, that is if we are talking about the multiplication of matrix B by A, is it possible, the multiplication of B by A? So let us see over here. Now matrix B is the first matrix over here of order 3/3 and matrix A is of order 2/3, which is the second matrix over here. So now we have to see the number of columns of the first matrix and number of rows present in the second matrix. Are they same? No, they are not same. So what is the result? The result is B multiplied by A is not possible over here. So the multiplication of B into A is not possible because the inner dimensions are not same over here. Okay, I think आप अंडरस्टैंड कर चुके हो गए इस कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लिकेशन के. सो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ी जर्नल फॉर्म के बारे में बताऊंगी. सो हाउ टू ऑब्टेन द मल्टीप्लिकेशन, हमें ये फॉलोइंग प्रोसेस जो है, गिवन प्रोसेस जो है, इसको फॉलो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे एक जर्नल फॉर्म की मैट्रिक्स मैंने ली हुई है, दैट इज़ वी हैव A ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड B ऑफ ऑर्डर 3/3. अभी जो ऑर्डर हमने डिस्कस किया है ऊपर, मैंने उसी ऑर्डर की मैट्रिसेस ली हुई हैं 2/3 and 3/3. So we have already discussed about the multiplication of A by B is possible here and multiplication of B into A is not possible here. So now we are going to find A into B here. So how to obtain A into B here?
because B into A is not possible. A into B is possible, and to obtain it we have to follow the procedure like to obtain a new matrix A by B of order 2:3. Now we can see here that जो नई मैट्रिक्स होगी वो होगी A इंटू B, और उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी 2 रोज होंगी और उसके 3 कॉलम्स होंगे, यानी उसका ऑर्डर होगा 2/3. Now first step, to obtain the elements of row 1 of new matrix A into B, we have to multiply the first row of matrix A by first column of matrix B. अभी यहाँ पे हमारे पास जर्नल ऑर्डर की 2 मैट्रिसेस हैं, 2 इंटू 3 ऑर्डर और 3 इंटू 3 ऑर्डर. अब हम करेंगे क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/3 होगा, यानी कि उसमें 2 रोज़ होंगी और उसमें 3 कॉलम्स होंगे. अब ये 2 रोज़ और 3 कॉलम्स बनेंगे कैसे, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कैसे बनेगा, हमें फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट रो की एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम के साथ. कैसे करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई A11 विद B11, देन प्लस A12 को B21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A13 को B31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस वुड गिव अस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द न्यू मैट्रिक्स A इंटू B. देखो यहाँ पे अभी क्या लिखा है फर्स्ट स्टेप में, कि हमें अगर एक फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो वो कैसे बनेगा, दैट वुड बी फर्स्ट रो, ये लिया हमने मैट्रिक्स A की फर्स्ट रो ली है, दिस इज़ द फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स B का हमने फर्स्ट कॉलम लिया है. सो दिस इज़ रिटन ओवर हियर लाइक दिस. सो नाउ जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया आपको, वैसे यहाँ पे ये उन्होंने मैंने नीचे लिखा हुआ यहाँ पे A11 मल्टीप्लाई बाय B11, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद A12 को मल्टीप्लाई किया B21 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन, A13 को मल्टीप्लाई किया B31 के साथ. दैट वुड बी इक्वल टू, मैंने अब जो नई मैट्रिक्स है उसको मैंने नाम दे दिया है, उसके एलिमेंट्स को नाम दिया है AB11. मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया है गलती से, वी हैव टू यूज़ स्मॉल लेटर ओवर हियर. सो जो नई मैट्रिक्स A इंटू B होगी उसका पहला एलिमेंट होगा स्मॉल AB11. ठीक है, ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा नई मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होगा, और उसका जो पोजीशन होगा दैट वुड बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब इसी तरह से अगला जो एलिमेंट है वो कैसे निकालेंगे, सो दैट वुड बी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 1 and column 2 of AB multiplying first row of A with second column of B. ठीक है, तो ये पहले पोजीशन बताइए उसकी, कि जो नई मैट्रिक्स होगी उसकी फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो कैसे हम निकालेंगे. तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स A है उसकी रो नंबर फर्स्ट ही यूज़ करेंगे, और जो कॉलम नंबर जो हमारी B मैट्रिक्स है उसका हम सेकंड कॉलम यूज़ करेंगे. ठीक है, और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया है और B मैट्रिक्स का हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 ले लिया है, जिसके एलिमेंट्स हैं B12, B22, B32. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ A11 बाई B12 प्लस A12 को मल्टीप्लाई किया B22 के साथ प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय B32, और ये हमें क्या देगा, स्मॉल AB, और एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. एंड इसी तरह से हमें बाकी जो एलिमेंट्स हैं नई मैट्रिक्स के उनको फाइंड आउट करना है. ठीक है, मैं आपको ऊपर जाके थोड़ा बता देती हूँ इसको विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू यूज़ सेकेंड रो. सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ इसके, फिर सेकेंड रो को
सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम जो रो यूज़ करेंगे, इधर जो ए मैट्रिक्स है उसकी हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं और मैट्रिक्स बी के हम लोग कॉलम्स को यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। जो हमने रो यूज़ की है और जो कॉलम यूज़ किया है वही वो हमारे जो नई मैट्रिक्स होगी उसके एलिमेंट की पोजीशन को फॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें क्या देगा? दिस विल गिव अस एन एलिमेंट ऑफ A11। अगर हम सेकेंड रो को यूज़ कर रहे हैं और साथ में थर्ड कॉलम को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें एलिमेंट देगा A सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ये हमें A23 मैट्रिक्स A23 एलिमेंट जो है वो देगा। ठीक है, अब ये जो थे दीज वर द रूल्स और वी कैन से द प्रोसेस। अभी इनको मैंने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया है। अभी ये जो नई मैट्रिक्स है AB, इसके एलिमेंट्स ये जो मैंने ऊपर निकाले थे AB11, इसको मैंने इस यहाँ पे लिख लिया, इसकी पोजीशन पे। उसके बाद ये 1 2 है, इसको यहाँ पे लिख लिया और क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो थर्ड कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ जो मैट्रिक्स A है उसका हमने फर्स्ट रो यूज़ किया है और जो मैट्रिक्स B है उसका हम लोगों ने थर्ड कॉलम यूज़ किया है। यहाँ पे जो A जो है वो गलती से लिखा गया है, यहाँ पे आएगा B13। ओके, सो नाउ वी हैव अरेंज्ड ऑल दीज एलिमेंट्स एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑल दीज एलिमेंट्स वी विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिससे हमें और क्लियर होगा कैसे करेंगे इसको। दिस इज़ A, B, सेम ऑर्डर 2 by 2, 2 by 2. So each and every element order is 2:2 here. सारी चीज़ें रो कॉलम सब 2 2 हैं। सो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। सो क्या करेंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ। सो 1 2 and 5 7. नाउ मल्टीप्लाइंग 1 by 5 and then plus sign and multiplying 2 by 7। ठीक है, ये हमें मिल गया नया एलिमेंट, नई मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। सो इनको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आया 19। उसके बाद फर्स्ट रो और हमने सेकेंड कॉलम यूज़ किया। अब फिर से यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन डाला, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी गेट 22। उसके बाद हमने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को यूज़ किया, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को यूज़ किया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये क्या है, AB 2 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम AB 2 1। सो अभी इनकी पोजीशंस के हिसाब से हम लोग इनको फिट कर देंगे। दैट इज़ यहाँ पे लिख दिया मैंने AB 11 की जगह पे 19 22 43 एंड 50। सो दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अभी तक के लिए आप इतना समझो और इसके साथ के न्यूमेरिकल्स ट्राई करो घर पे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो डिस्कस इट विद मी इन द ग्रुप। वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस, और अगर समझ में आ गया है तो वी विल ट्राई द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।